Okay, so we were doing types of forces, but before that, let's recall the previously done topics. What is force? Raise your hands only. What is force? Jo- Yes, pushing or pulling an object. Push or pull applied on an object is called force. What are the effects of force? Harveen. It can change the shape of object. Yes, Vinisha. Speed. It can increase or decrease the speed of object. Yes, last boy. देख कर नहीं बताना है, खुद बताओ जो आपको पता है. Yes, it can change the direction of moving object. Yes. It can move the things. Yes. It can stop a moving object. Okay, so there are 5 things that force can do. It can stop a moving object. It can move an object. It can increase or decrease the speed of moving object. It can change the direction of moving object, and it can also change the shape of object. Okay, 5 things that force can do. How many types of forces we have studied? Yes, Arishi. Yes. Muscular force, mechanical force, force of friction, and force of gravity. What is muscular force? No, ma'am. Okay. Yes, Harun. Good. Force applied by our muscles is called muscular force. And what is mechanical force? Jigar? Machines. Okay. Force applied by machines on the machines and on the tools to make them work is mechanical force. Okay. And what is force of friction? Yes. Yes, the force that opposes movement. It is a force that arises between two rough surfaces. Okay, force of friction always opposes the movement. और ये कब बनता है? two rough surfaces के बीच में. And force of gravity. Yes, Naksh. तो ये कौन लगाता है फोर्स ऑफ ग्रेविटी? अर्थ लगा रही है. किस पे लगा रही है? On all the objects on it. Okay, earth is pulling all the objects toward it by force of gravity. ठीक है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी से ये सारी चीजों को अपनी तरफ पुल कर रही है, खींच रही है. ओके, तो हम फ्लोट कर रहे होते हैं हवा में ऐसे ही. ओके, नो. Okay, so let's do next topic, which is work. This term is very common. आपने बहुत बार ये वर्ड सुना है. ओके, होमवर्क आपको डेली मिलता है जो आप करते हो. ओके, सो वर्क. बट यहाँ पे हम क्या करेंगे? साइंटिफिक व्यू ऑफ वर्क. ओके, अब देखो यहाँ पे हम फोर्स की बात कर रहे हैं. यहाँ पर हम फोर्स की बात कर रहे हैं. ओके, तो यहाँ पे वर्क आप क्या समझते हो? जब हम किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाते हैं, ठीक है, व्हेन वी अप्लाई फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट, वो फोर्स कोई भी टाइप का हो सकता है इनमें से. ओके, और बिकॉज ऑफ दैट
फोर्स, वो ऑब्जेक्ट में कुछ मूवमेंट होती है, ठीक है। मूवमेंट होगी तो वो कोई डिस्टेंस कवर करेगा। डिस्टेंस क्या होता है? दूरी। जितना अगर मैं यहाँ से चल के इधर आई हूँ तो मैंने यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस कवर किया है वो डिस्टेंस की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। एवरी डे यू कम टू स्कूल फ्रॉम योर होम, आपके घर और स्कूल में कुछ डिस्टेंस है वो आप कवर करके आते हो, ठीक है। यहाँ वो डिस्टेंस की बात कर रही है। अगर ये आप बेंच यहाँ से मूव करके यहाँ लेकर आओ तो इसकी पोजीशन चेंज हुई है, तो ये इसने कुछ डिस्टेंस कवर किया है। तो पोजीशन चेंज होना किसी ऑब्जेक्ट की, जब वो मूव करती है पोजीशन चेंज होती है, हम उसको क्या कहते हैं? उसने कुछ डिस्टेंस कवर किया है। अंडरस्टूड? गॉट माय पॉइंट? यहाँ पे क्या डिस्टेंस क्या होता है? जब कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में है, मूव कर रहा है, वो उसकी पोजीशन चेंज हो रही है, देन वो बॉडी डिस्टेंस कवर कर रही है, ठीक है। तो जब कोई ऑब्जेक्ट पे फोर्स लग रहा है और वो फोर्स की वजह से, बिकॉज ऑफ दैट फोर्स, दैट ऑब्जेक्ट इज मूविंग थ्रू सम डिस्टेंस, देन वी से वर्क इज डन, ओके। Every day you are coming to school from your home. Are you using any force? No. Yes. No. Yes. If you are walking, you are using your muscular force. If you are coming through some vehicle, say bus, car और bike, तो आप mechanical force use हो रहा है, ठीक है। तो कुछ force लग रहा है when you are walking, ठीक है। और आपका कोई distance cover हो रहा है? No. डिस्टेंस कवर हो रहा है आपके घर से स्कूल तक, तो दोनों चीजें हो रही हैं, then we will say that work is done, okay। When force is applied, sit down. When force is applied and some distance is covered, then we say work is done, okay। Now Harveer, come here. Come here. Push this wall. Board को push करो, जोर से push करो, और जोर से push करो। Do you think this wall will move? No. तो इसने force तो लगाया है, क्या इसने distance किया है कुछ? No. ने कुछ work किया है? Yes. तो हरवीर ने as usual कोई work नहीं किया, ठीक है। चाहे हरवीर सारा दिन इस वॉल को पुश करता रहे, अपना पूरा फोर्स लगा दे जितना उसके पास है, still if the wall is not moving, his work will set to be zero, ठीक है। डिस्टेंस नहीं हुआ ना, डिस्टेंस क्या है? जीरो हो गया। फोर्स चाहे उसमें जितना मर्जी लगाया है, बीच में कौन सा साइन है? मल्टीप्लाई। किसी भी नंबर को जब आप जीरो से मल्टीप्लाई करते हो तो आंसर हमेशा क्या आता है? जीरो, है ना। तो अगर फोर्स लगाने के बाद भी वो ऑब्जेक्ट में कोई डिस्टेंस नहीं होता है, कोई वो डिस्टेंस कवर नहीं करती है, देन इट्स वर्क सेट टू बी जीरो, ओके। फॉर एनी वर्क टू बी डन देयर शुड बी सम फोर्स अप्लाइड and there should be some movement in that object. Clear? Yes. Concept of work is clear to you? Yes. Similarly, अगर कोई बॉडी मूव कर रही है, ठीक है, बट उस पे कोई फोर्स वर्क नहीं कर रहा है, in that case also work zero है, okay। So for any work to be done, though these two things should be satisfied, ठीक है। ये दोनों चीजें होनी चाहिए, right? Clear? Yes. So let us read from page number 38. Yes, Angel, please come. Go. Work is said to be done when a force moves a body through a distance. Yes. Work is this is the definition of work. यहाँ पे अब इसके साथ अब इसको मैच करो। Work is said to be done when a force moves a body through a distance. Force
moves the body through a distance. ये दोनों फैक्टर्स उसमें आ गए हैं, दोनों फैक्टर्स हैं, ठीक है। तो ऐसे आपकी ये वर्क की डेफिनेशन कंप्लीट होती है। ओके, force is said to be done when force moves the body through a distance. Work is done when you lift your school bag and carry to school. Okay, when you lift your school bag नीचे है, आपने उसको अपने shoulders पे रख लिया, उसका distance आ गया ना थोड़ा, तो उसमें वर्क डन हुआ है या नहीं हुआ है? हुआ है, because you use your muscular force and जो बैग है उसका डिस्टेंस भी कुछ हुआ है, so in that case work is done. Push a chair through a distance and so on, but no work is done when you push a wall as it does not move. To do work, Underline this. No work is done when you push a wall as it does not move. Underline this. to do work, we need to apply force of some kind and move it through a distance. Human and animals use their muscles to do work. They use muscular force to walk, swim, lift, or do any other work. Work equals to? Work equals to force multiplied by distance. Yes, force into distance. Good. So in the next we have some activities. First में देखो, is work done when, जहां पे आपको लग रहा है वर्क डन हुआ है उस सेंटेंस को आपने टिक करना है। आपको दो पिक्चर्स हैं, अ पर्सन इज पुशिंग द कार। फर्स्ट केस में क्या है, आई मूव्ड इट, उसने कार मूव की थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर, लिखा भी हुआ है ना 1 मीटर। बच्चे लुक एट द बुक, लुक एट द बुक। एंड इन सेकंड केस क्या लिखा है उसने, आई कैन नॉट मूव इट, द कार डज नॉट मूव एट ऑल। तो आपको वो टिक करना है जहां पे वर्क हुआ है, बस अपने आप टिक कर लो, टिक करके रखो। एंड it is also written, give explanation of your choice. वो भी लिखो, जो नीचे स्पेस है ना वहां पे लिखो, why do you think the work is done in first case? Give your answer, आप अपने वर्ड्स में आंसर लिखो, then I will ask you. Yes, online students, please mark your attendance. Yes, Harshita, we always do this, but we will do this after the completion of discussion of this chapter. Nishita, write down. Explain करना है आपने। दिवाश लिखो। जगरीत, you also write. पहले आप टिक करो कि आपको क्या लगता है किस केस में वर्क हुआ है, then you also give your reason. Yes, Natanya. Yes, because car moved through a distance of 1 meter and force was also there. Karthik. Distance is covered. Sahaj. Very good, very good. So option 1, जहां पे वर्क डन हुआ है, राइट। अब जो नेक्स्ट पेज पे एक्टिविटी है, ऑन द पेज नंबर 39, you will do it yourself. I'm giving you 1 minute. 3 pictures are given and again you have to tell in which case work is done and in which case work is not done. You have to give your answer in yes and no. So let's discuss. See, first picture is Mohit is going to school carrying his school bag. Work is done because उसने अपना बैग कैरी किया है and he is moving. Second is Ravi is pushing the wall. Yes, work is not done. Third is Sanjay is crossing the river by swimming. Yes, swim कर रहा है, swimming में muscular force use होता है. Okay, and he is crossing the river, वो distance भी cover कर रहा है. Okay, so work is done.
फर्स्ट और थर्ड केस में वर्क हुआ है, सेकंड केस में नहीं हुआ है। हरवीर, sit properly. Okay, let's do next topic. What? पहले समझ तो लो। Okay, so next topic is machines. See, we are surrounded by machines. ठीक है, हमारे आसपास इतनी machines हैं, इवन हमें पता भी नहीं है। Okay, so जो machines है ह्यूमन मेड है, ठीक है, हमने खुद ही बनाई है। क्यों बनाई है? मशीन होती क्या है? All those things that make our work easy, save our time, save our energy, that is called machine. ठीक है, जिसमें कुछ टूल्स लगे होते हैं। ओके, वो सारी चीजें, वो सारे ऑब्जेक्ट जिनको हम अपनी फैसिलिटी के लिए यूज करते हैं। आरिशी एंड आशिमा, पे अटेंशन। जिनको हम अपनी फैसिलिटी के लिए यूज करते हैं। ओके, हम अपना वर्क इजी करते हैं, अपनी एनर्जी और टाइम सेव करते हैं, और वो हमारा जो एफर्ट्स है, एफर्ट्स मतलब हमारा जो जोर लगता है, फोर्स लगता है काम करने के लिए, वो कम कर देती है। ओके, वो सारी चीजें क्या है? मशीन है। ओके, जैसे पहले आप, बहुत सारे बच्चे आपको स्कूल के सब पास तो नहीं रहते, बहुत दूर दूर रहते हो। कोई बच्चा कार में आता है, कोई बच्चा स्कूल बस में आता है, कोई बच्चा बाइक पे आता है ना। तो वो ये सारी क्या है? मशीन्स हैं। ठीक है, अदरवाइज अगर आपको डेली स्कूल चल के आना पड़े, आपको शायद आधा घंटा, एक घंटा भी लग जाए। आप कुछ बच्चे इतनी दूर से आते हैं, है ना। बट what you are doing, you are using a machine, you are using a vehicle. तो उससे क्या होता है? आपकी एनर्जी सेव होती है। चल के इतना सारा चल के आप कितना थक जाओगे, है ना। आपका टाइम सेव होता है। जो डिस्टेंस आधे घंटे में कवर होना था चल के, वो आप हार्डली 5 मिनट्स में कवर कर लेते हो। ओके, एंड इट ऑल्सो सेव्स योर एफर्ट्स। ठीक है, जो एफर्ट्स, जो टाइम, जो एनर्जी आप चलने में कंज्यूम करते वो आप कहीं और, किसी और यूजफुल काम में यूज कर सकते हो। ओके, क्लियर? और मशीन जो है ये हमारा फोर्स को कई टाइम, जो हम फोर्स लगाते हैं उस फोर्स को कई टाइम बढ़ा देती है। जैसे साइकिल में आप पैडल करते हो, ठीक है, आप हल्का सा पैडल करते हो, साइकिल आपको, आपका फोर्स मल्टीप्लाई करके आपको ज्यादा दूर तक लेके जाती है। ओके, ये तो बस व्हीकल्स की बात थी। और भी बहुत सारी मशीन्स हैं। दिस फैन इज अ मशीन। ठीक है, इवन आपके जो ज्योमेट्री बॉक्स में कंपास है, कंपास वो भी मशीन है। ठीक है, उसमें टूल्स लगते हैं ना, स्क्रू लगते हैं। ठीक है, उससे आप इजीली सर्कल ड्रॉ कर लेते हो, दैट इज ऑल्सो अ मशीन। सीजर्स बहुत ही सिंपल सी एक छोटी सी मशीन है जो हमें हेल्प करती है कटिंग में। ओके, सो नितिन, give me that scissor. Okay, so ये सब क्या है? मशीन। सो मशीन का कंसेप्ट समझ आ गया। एनीथिंग दैट मेक्स अवर वर्क इजियर, सेव्स अवर टाइम, सेव्स अवर एनर्जी इज कॉल्ड मशीन। ओके, नाउ machines are of two types. Simple machine, complex machine. Simple, anything which is simple, which is straight. ठीक है, जो कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। कॉम्प्लेक्स जो सिंपल नहीं है, जो कॉम्प्लिकेटेड है। ठीक है, सिंपल मशीन्स हमारे पास बहुत सारी हैं। ठीक है, वो हम आगे टॉपिक में पढ़ेंगे। जो कॉम्प्लेक्स मशीन होती है वो 2 और मोर सिंपल मशीन्स को ज्वाइन करके बनाई जाती है। ठीक है, अदरवाइज मोटिव इनका यही है। कॉम्प्लेक्स मशीन में बहुत सारी सिंपल मशीन्स लगी होती है, क्लियर, जो कि सब मिलके वर्क करती हैं। राइट? यस, लाइक बाइक। ठीक है, हम हमारे घर में बहुत सारी छोटी छोटी मशीन्स हैं, बड़ी मशीन्स हैं।
जैसे आप किचन में चले जाओ, माइक्रोवेव है, मिक्सर, ग्राइंडर, जूसर है, वॉशिंग मशीन होती है घर में, ठीक है, आपका टेलीविजन है, एसी है, फैन है, ये सब मशीन्स है। बाहर इंडस्ट्रीज में, फैक्ट्रीज में तो बहुत बड़ी बड़ी मशीन्स होती हैं, ओके, तो वो कॉम्प्लेक्स मशीन्स है। तो यहाँ पे हम किसके बारे में पढ़ेंगे? सिंपल मशीन का पढ़ेंगे, ओके। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? यस, ठीक है। कॉम्प्लेक्स जो बहुत सारी सिंपल मशीन से बना होता है, ठीक है, जो बड़ी बड़ी मशीन है वो सारी कॉम्प्लेक्स है, इसके बारे में नहीं हम पढ़ेंगे, हम सिंपल मशीन के लिए पढ़ेंगे, ओके। So we have 6 types of simple machines, okay, 6 types में से first type is lever, ठीक है, लीवर की एग्जांपल है सीजर। तो लीवर में क्या होता है, देखो, दिस इज अ सीजर, पेयर ऑफ सीजर्स, इसके दो पार्ट, ये जब दो टूल्स ये मिलते हैं देन इट मेक्स वन पेयर ऑफ सीजर्स, ठीक है। जैसे ये सीजर जो है ये एग्जांपल है लीवर की। तो जितने भी लीवर्स होते हैं, लीवर जैसी सिंपल मशीन्स होती हैं, उसके 3 पार्ट्स होते हैं, वन दिस पार्ट, एक उसको ज्वाइन करता है, एंड एक ये पार्ट, ठीक है। लीवर के एक पार्ट पे हम फोर्स लगाते हैं, दिवांश पे अटेंशन, जितने भी लीवर्स होते हैं उसके एक पार्ट पे हम फोर्स लगाते हैं, एक पार्ट उसको ज्वाइन करने के लिए होता है, दूसरे पार्ट पे उसका इफेक्ट दिखता है। मैं फोर्स यहाँ पे लगा रही हूँ, ठीक है, और इसका इफेक्ट कहाँ होगा? दूसरे साइड पे होगा, राइट, और यहाँ से पेपर कट हो जाएगा। तो लीवर में क्या होता है, एक पार्ट पे, इसके 3 पार्ट्स होते हैं, एक ज्वाइन करता है, एक पे हम फोर्स लगाते हैं, दूसरे पे उसका, थर्ड पार्ट पे उसका इफेक्ट दिखता है। इसकी एक और एग्जांपल है सीसॉ। सीसॉ पे बैठे हो आप? सीसॉ कैसा होता है? एक पार्ट उसको ज्वाइन करता है जो उसका कॉमन होता है, ठीक है, एक बच्चा यहाँ पे बैठता है और एक बच्चा यहाँ पे बैठता है। जब ये चाइल्ड इसको फोर्स लगाता है, फोर्स वो कैसे लगाता है? डाउनवर्ड्स लगाता है। जब ये यहाँ पे फोर्स लगाता है उसका इफेक्ट कहाँ पे आता है? दूसरी साइड पे अपवर्ड्स उसका फिर इफेक्ट आता है, ठीक है। तो लीवर जितने भी होते हैं, लीवर जितने भी होते हैं उसमें एक जॉइंट होता है पोर्शन, ठीक है, एक पार्ट पे हम फोर्स लगाते हैं और दूसरे पार्ट पे, किसी थर्ड पार्ट पे उसका इफेक्ट दिखता है, ठीक है। यू हैव स्टेपलर्स, स्टेपलर्स देखें, स्टेपलर में हम क्या करते हैं? पेपर को स्टेपल करते हैं। उस स्टेपलर में जो उसका एंड पार्ट होता है वो ज्वाइन होता है, हम सेंटर में कहीं पे फोर्स लगाते हैं और उसके जो सबसे आगे वो पिन लग जाती है जहां पे फोर्स का इफेक्ट दिखता है, ओके। कंपास में भी होता है ऐसे, सेम कंपास स्टेपलर जैसी ही होती है, ठीक है, स्क्रू नहीं लीवर है, ठीक है। तो लीवर का आपको कंसेप्ट समझ में आया? यस, दैट क्लिप इज आल्सो अ लीवर, यस, ओके, ये उसको पास कर दो। तो लीवर आपको समझ आ गया? समझ आ गया लीवर? इसकी आपको एग्जांपल पता होनी चाहिए। सीसॉ, सीजर्स, स्टेपलर, और भी बहुत सारी एग्जांपल्स है, लाइक बॉटल ओपनर, जो कोल्ड ड्रिंक्स की बॉटल्स होती है ना, जिसपे बहुत टाइट सा वो लिड लगा होता है, ठीक है, उसको ओपन करने के लिए एक स्पेशल टूल आता है, देखा है कभी आपने? तो वो बॉटल ओपनर जो है वो भी एक काइंड का लीवर है, ओके। जो आपको इजी लगती है आप वो एग्जांपल्स कर सकते हो,
ओके, टाइप तो अभी हमने एक डिस्कस करी है सिंपल मशीन की। सिंपल मशीन 6 टाइप्स की है। हाँ जी वो भी है। यहाँ पे जहाँ पे आपको बुक में लिखा हो ना लीवर, इसके साथ एग्जांपल्स लिख लो ताकि आपको याद रहे। सीजर्स उन्होंने ऑलरेडी बनाई हुई है और साथ में ये कुछ एग्जांपल्स लिख लो।